آج کے کلام کا ٹاپک ہے اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے. اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے. عدالت کا کام سارا خدا نے یسوع مسیح کے سپرد کیا. آمین. اور عدالت کرنا یسوع کا کام ہے. خدا نے انسان کو اس کا نہ تو اختیار دیا اور نہ اس کا حق بخشا ہے کہ میں کسی کی عدالت کروں. عدالت کا سارا کام کسی کو مجرم ٹھہرانا، کسی کو سزا دینا، کسی کو بادشاہی میں داخل کرنا یا نہ کرنا، اس ساری باتوں کا کام خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو سونپ دیا. ہیلیلویا. اور جو آج کے لوگ اپنے اندر اس بات کو رکھتے ہیں کہ نہیں اے بندہ ٹھیک نہیں ہے یا اے غلطی ہے، انہوں اے سزا ملنی چاہیے، تو وہ ابھی سے اپنے آپ کو الرٹ کر لے. وہ اپنے آپ کو خود خدا کی نظر میں مجرم ٹھہراتے ہیں. آمین. اور اس لیے جب ہم کلام سیکھتے ہیں نا تو کلام میں سے ہمیں یہ ساری باتیں ملتی ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے جیسے سیکھا کہ ہم مسیح کا کیا ہے؟ بدن ہے، اور فردن کیا ہے؟ اعضاء ہیں. اور اس کے اعضاء جو اس کے ہیں وہ اسی کا کام کرتے ہیں. میرا اعضاء آپ کا کام نہیں کرتا، یا آپ کے بدن کا اعضاء میرا کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ لگا تو اس نے آپ ہی کا کام کرنا ہے. اسی طرح سے یسوع مسیح کے اعضاء بھی یسوع ہی کا کام کرتے ہیں. اور یہاں پر آج ہم سیکھیں گے مرکزی آیت یوحنا کی انجیل باب نمبر 12 اور 31 آیت مقدسہ کو. آج کی پہلی تلاوت ہم خداوند کی حضوری میں پیش کرتے ہیں. اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا. اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. یہ عدالت ہو چکی ہے، یہ عدالت ہو چکی ہے، کیونکہ اس عدالت کا ٹائم یسوع مسیح کی مصلوبیت کے ساتھ جڑا ہے. اور جب اس وقت یسوع مسیح مصلوب ہوئے ہمارے گناہوں کی خاطر، اس وقت خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے کر صلیب پر اپنی جان دے دی. تو ایک عدالت اس وقت ہمارے گناہوں کی ہو چکی ہے اور ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں آزاد کر دیا ہے. وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، یسوع مسیح میں شریک ہوتے ہیں، اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کی عدالت ہو چکی ہے. اب وہ بری ہے. اب وہ کیا ہے؟ بری ہے، کیونکہ خداوند یسوع سزا کا حکم سنانے نہیں آیا. اس نے اس لیے اپنے بیٹے کو قربان نہیں کیا کہ وہ ہم پر سزا کا حکم سنائے. اگر اس کو ہمیں سزا ہی دینی تھی تو پھر اس بیٹے کو قربان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یوحنا کی انجیل اسی کو ہم دیکھتے ہیں 3 باب میں. اس بات کی ایک ہم ایویڈنس یہاں سے لیتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی
क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी जी, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हाँ जी, कि जो कोई उस पर ईमान लाए ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, हलाक न हो, बल्कि बल्कि हमेशा की हमेशा की जिंदगी पाए। आगे भी, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा क्योंकि खुदा ने दुनिया में बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म कि दुनिया पर सजा का हुक्म सजा का हुक्म करे। खुदा ने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो हमारे लिए क्या करे, सजा का हुक्म करे। मेरी अपनी एक जाती टेस्टमनी है, बात की गवाही देता कि मेरी जब जिंदगी खुदावंद में आई तो मुझे जब कलाम सुनाया गया और उस कलाम को जब मैंने सुना और देखा तो वहां पर रोमियो 8 बाब और एक आयत, उसकी पहली आयत मुकद्दसा में ये बात रकम है कि बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। और ये जिंदा इंसान आपके सामने खड़ा है, ठीक है, और जिस पर मौत का हुक्म था, फाइनल डिसीजन था, और ये मेरा खानदान जानता है इस बात को। और जिन बातों को उस वक्त मैं अपनी जिंदगी में लेकर भाग रहा था, दुनिया में अपने आप को छुपा रहा था, उन बातों को लेकर मैं हर जगह पर डरा हुआ, खौफ ज़दा अपनी जिंदगी जी रहा था, तो तब ही खुदावंद ने ये कलाम मुझसे किया अपने खादिम के वसीला से। और जब मैंने उस कलाम को सुना तो मैंने उस खादिम से कहा कि क्या अगरचे मैं मसीह यीशु को कबूल कर लूं तो मेरी जिंदगी से सारे गुनाह और सारी सजाएं खत्म हो जाएंगी। उसने कहा कि 100% ये कलाम का फैसला है कि जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। और मुझे नहीं पता कि किस किस तरह से फिर खुदा ने मुझे बचाया और मुझे अपनी निजात में शामिल किया, अपने लिए अलग किया, अपने लिए उसने फिर तैयार किया। और आज मैं उन सारी बातों से आजाद होकर आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, और ये मेरी जिंदगी की सच्ची गवाही है। हालेलुया। अगली आयत को पढ़े। जो उस पर ईमान लाता है यस, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता, जो उस पर ईमान नहीं लाता, उस पर सजा का हुक्म हो चुका, उस पर सजा का हुक्म हो चुका, हो चुका है। जिस शख्स ने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उस जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। और अगर वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं सजा का हुक्म सुनाऊं, उन जिंदगियों के लिए जिनके लिए मैंने कुर्बानी दी है, जिनके लिए मैं कुर्बान हुआ हूं, उन पर मैं सजा का हुक्म सुनाने नहीं आया। तो जो यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है हकीकी जिंदगी, और ये है हकीकी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना। ये कोई मसीहत आम बात नहीं है, ये कोई आम मजहब नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आगे जाके किसी को धोखा मिलेगा, किसी को अलहदा से इस बात के लिए बताया जाएगा
कि नहीं जी आपके साथ तो ये धोखा हुआ है, आप पर तो सजा का हुक्म लागू हो गया है, आपकी तो अदालत होना बाकी है। वो अदालत जो यीशु मसीह ने सलीब पर आपके गुनाहों की कफारा दे के अदालत कर दी है, उस बात को हमने आज अपनी जिंदगी में लेना है। 12 बाप की 31 आयत पे वापस जाएंगे। हालेलुया। और जिन बातों को हम सीख रहे हैं, इनको हकीकी तौर पर अपने ईमान में रखें कि ऐसा ही खुदा करने की कुदरत रखता है और कर रहा है और वो करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है और उसके वादे सच्चे और जिंदा है। जी 31 आयत जी, यहाँ पर लिखा है, अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के ये अकॉर्डिंग बयान है, कोई इंसान नहीं सुना रहा, रसूल नबी पैगंबर नहीं सुना रहा, ये यीशु मसीह के खुद के बयान है कि जैसे ही मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो मैं जब आसमान पर जाऊंगा तो अपने साथ तुम्हें भी, जो मुझ पर ईमान लाते हैं, जो मेरे लिए अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, जो तौबा करते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, मैं उनको भी अपने साथ खींच लूंगा। खुदा हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़े। यूहन्ना की इंजील में जो भी बाप में लिखा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और फिर वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। खुदावंद आ रहा है, किनको लेने? जो उसके बदन में शामिल है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए इसलिए कुर्बान किया है कि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। और इस बात को हमने सीखा है क्योंकि वो हमारा पहलौठा और हमारा बड़ा भाई है। हालेलुया जी। इससे आगे आयत को हम पढ़ते हैं। 33 आयत में लिखा है, उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूं। यीशु मसीह अपनी मौत के बारे में जानते थे, उन्हें पता था कि मैं किस तरह की मौत मरूंगा। और खुदा ने कैसा इंतजाम हमारी जिंदगियों के लिए किया है कि उसने एक को मौत के हवाले करके बाकियों को उसके वसीला से बचा लिया। और हम वो लोग हैं जो बचाए गए हैं। हाँ? अब हमें अपनी जिंदगी को उस अज़ा के मुताबिक लेकर हमेशा अपने आप को मसीह का बदन मानते हुए, जानते हुए हमेशा वैसा ही करना है, वैसा ही किरदार रखना है, वैसी ही शख्सियत रखनी है, वैसे ही मेल मिलाप रखना है, वैसे ही बोल चाल रखना है, वैसे ही चाल चलन रखना है, ताकि हम उसका बदन जाहिर। और जब तक हम खुदावंद के बदन को और खुदावंद के अज़ा को अपनी जिंदगी में एज इट इज वैसा ही नहीं लेके चलते, तब तक हम आसमान के वारिस बने। क्योंकि वो लेने किसको आ रहा है? वो अपने बदन को लेने आ रहा है, है? और उसका बदन क्या है? कलीसिया। उसकी दुल्हन क्या है? कलीसिया। उसकी मलका कौन सी है? कलीसिया। बादशाह की मलका कौन है? कलीसिया।
दूल्हे की दुल्हन कौन है? कलीसिया। यहाँ पर मुझे आस्तर की बात याद आती है। आस्तर ने जब गुलामी में थी तो बादशाह के सामने पेश की गई, तो बादशाह ने उसको देखा, वो उसका हुस्न का दीवाना हो गया, तो उसने उसको सिर्फ गुलाम नहीं रहने दिया बल्कि उसको मलका बना दिया। और मलका बनाने के बाद उसने उसको मलका का दर्जा भी दिया, उस हैसियत में भी उसको रखा। और ये एक मुकाशफाती बात है। कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साथ उस मलका के रुतबे पर फाइज किया है, कायम किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने अगरचे हमारी जिंदगियों का कफारा दिया है, वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा आका है, वो हमारा कफारा देने वाला है, और उसने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि हम उसकी बादशाही के वारिस बन जाएं। यूहन्ना 3 बाब पर उसकी एक आयत से हम इस बात को सीखेंगे। ये बात है निकोदेमस के बारे में। निकोदेमस वो शख्स था जो यहूदियों का सरदार था, हा? और आलम भी था, हा? और उसकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह नहीं था। तो उसको जब वो बातें सुनता, खुदा के बेटे यीशु मसीह की वो गवाहियां सुनता, तो उसके अंदर उसका ईमान जोश मारता और वो उससे मिलना चाहता था और लोगों से डरता भी था। तो रात गए, आधी रात को अपने आप को छुपा कर वो यीशु मसीह के पास लेके आता है। और जब यीशु मसीह के पास आता है तो यहां से हम इसको पहली आयत से पढ़ेंगे, 3 बाब, और उसकी पहली आयत से पढ़ें जी इमरान। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। यस। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। हाँ कि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता, यस, जब तक खुदा उसके साथ न हो। जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यस। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यहाँ पर ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फुली फाइनल है, और खुदा की बादशाही को कोई शख्स देख नहीं सकता जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो। और नए सिरे से पैदा होने के लिए निकोदेमस उससे एक सवाल फिर से करता है। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? यस। क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यस। यीशु ने जवाब में दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये फाइनल, फुली फाइनल बात है कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, यहाँ पर जिस्म का कोई ताल्लुक, कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ पानी और रूह को खुदावंद यीशु मसीह बयान कर रहे हैं। और रूह और पानी, जो पानी से बपतिस्मा लेता है और वो इनाम में रूह कुदुस को हासिल करता है,
पानी से बपतिस्मा लेना ऑर्डिनेंस है, कानून है, ये हुक्म है। और उस हुक्म की ताबेदारी दो तरह से की जाती है, एक तौबा के वसीला से और दूसरी अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह में कायम करने से, पानी से बपतिस्मा लेने से। और इन दोनों कामों को इंसान ने पूरी अकल से करना होता है, उसको सोच के समझ के कि मैं अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा के लिए दे रहा हूं। उस जिंदगी का अब मेरी पे कोई इख्तियार नहीं है। जिस जिंदगी को मैं गुजार रहा था उसमें मैंने गुनाह किए, मैंने उसमें बुरी सोबतें रखी, बुरे काम किए। अब वो जिंदगी मैं छोड़ता हूं और एक नई जिंदगी में मैं दाखिल होता हूं। और जो नई जिंदगी में दाखिल होता है वो पूरी सोच और समझ के साथ होता है। फैसला किया है अपनी जिंदगी से कि अब मैं किसकी प्रस्तिश करूंगा। हालेलुया। मैं खुदा ही की प्रस्तिश करूंगा, मैं उसकी ही इबादत करूंगा, मैं उसके हुक्मों को मानूंगा, मैं उसकी रास्तबाजी में जिंदगी बसर करूंगा। मैं अब वैसे काम नहीं करूंगा जो मैंने पहले अपनी जिंदगी में किए और मैंने उन्हें छोड़ा है, तर्क किया है, और मैंने पानी से बपतिस्मा लेना है। जिस बात के लिए ऑर्डिनेंस है वो हमें बाइबल में से पूरे करने हैं। उसके किए के बगैर हम उस सजा के हुक्म से बच, क्योंकि जिन पर खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से इस बात को बयान कर दिया है कि जो कोई मुझे कबूल करता है, खुदा ने इन बात में इस बात को जाहिर कर दिया ना कि यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो सजा का हुक्म सुना, उसने सजा का हुक्म नहीं सुना। सजा का हुक्म पहले से दर्ज हो चुका है। जो नहीं कबूल करेगा उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। किसने किया? खुदा ने। इसमें यीशु मसीह का कोई इंटरफेयर नहीं है। यीशु मसीह ने उस बात को सिर्फ बयान किया है, यहां पर उस बात को सिर्फ पेश किया जा रहा है। हुक्म खुदा की तरफ से पहले से जारी है और खुदा का हुक्म कभी भी टल, आसमान और जमीन, लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी भी हरगिज भी टल। और निकोदेमुस अपनी जिस्मानी हालत को लेकर उससे सवाल करता है कि क्या मैं माँ के पेट में फिर से वापस जाऊंगा? नो, अब तुझे दोबारा माँ के पेट में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तू अब पानी और रूह से नए सिरे से जब तक पैदा नहीं होगा आसमान की बादशाही को देख दाखिल होना तो बहुत दूर की गल, तू देख भी नहीं सकता। और यहाँ पर इस बात को बयान किया जा रहा है। निकोदेमुस को जब ये बात बताई गई तो हमने देखा है कि 6 आयत में यहाँ पर इस बात को दोबारा से उसने बयान किया है कि जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती है और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही है, उसकी अपनी कोई मर्जी, रूह की नीयत उसने बताई है कि वो जिधर चाहता है उस शख्स को ले जाता है। और आज के दौर में अगरचे कोई रूहानी है
तो वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं। तो जो अपनी मर्जी का मालिक है वो रूहानी नहीं बल्कि क्योंकि वो जिस्म की बातों को पूरा करता है। और खुदावंद यीशु यहाँ पर बयान कर रहे हैं, ऑथेंटिक तौर पर उसको पेश कर दिया है कि जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। हम जिस्म से पैदा तो हुए, लेकिन जब हमें खुदा ने कबूल कर लिया, हमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, पाक रूह कुदूस हमें मिल गया, तो अब हमारे जिस्म की वैल्यू खुदा की नजर में खत्म हो गई। फ्रांसिस की कलीसिया को पहले खत में लिखा है, 15वें बाप में इस बात को उसने कोड कर दिया है कि ये खून और गोश्त खुदा की बादशाही में दाखिल आए। इस बात को भी हम देखें, क्योंकि जिन बातों के लिए हमें खुदा अपने कलाम में से सिखा रहा है। जी 50 आयत से पढ़े। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हाँ जी आगे। और ना फना बका की वारिस हो सकती है। न फना बका की वारिस हो सकती है। और देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, यस, हम सब तो नहीं सोएंगे, यस, मगर सब बदल जाएंगे। सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में हो, एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। ये एक पल में और एक दम से पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे, और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। ये वो वक्त है जब यीशु मसीह ने आसमान पर आना है और एकदम से ये हालात बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उस बात की तस्दीक दी जा रही है कि खून और गोश्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। हाँ? जो जिंदा हैं वो भी एक पल में उनके बदन भी जलाली बदन हो जाएंगे, और जो कब्रों में हैं, हाँ? हिस्कियल में हम जब पढ़ते हैं इसको 35 बाप में, तो वहां और हिस्कियल को कहा कि क्या ये हड्डियां, मुर्दा हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? तो हिस्कियल आगे से कहता है कि खुदावंद तू ही जान। तो खुदा ने कहा कि इन पर कलाम, ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं, इन पर फिर से नसें, मांस और इसके ऊपर चमड़ा चढ़ जाएगा। और वैसा ही हुआ। इंसान की जिंदगी को खुदा ने बनाया, और खुदा से बेहतर इंसान को कोई समझ नहीं सकता। उसके उस मटेरियल को कोई जान। आज हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि अब दुनिया की अदालत की जाती है। ये हमने देखा है कि पहली अदालत हो चुकी है, लेकिन अब जो दुनिया की अदालत होने वाली है उसमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह आने वाले हैं। और क्या हम उस अदालत के लिए अपने अंदर तैयार हैं? क्या हम मसीह के बदन में वैसा ही कायम हैं? क्या हम मसीह का बदन बन चुके हैं? क्या हमने तौबा करके बपतिस्मा लेकर, हमने रूह कुदूस को लेकर अपनी जिंदगी को रूह के मुआफिक गुजारना शुरू किया है? क्या हम अभी तक जिस्म में जिंदगी बसर कर रहे हैं? और अगर हम जिस्म में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो जिस्म, खून और गोश्त खुदा की बादशाही में दाखिल अटल। कोई शक की गुंजाइश
क्योंकि जो लिखा है इसका एक नुक्ता, एक शोशा बाइबल में लिखा है कि बदलने वाला नहीं। वो हर बात एज इट इज वैसी ही पूरी। तो समझ जाए कि हमें अदालत के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हर इंसान की अदालत होगी। इस बात को हम आइंदा सीखेंगे। यहाँ तक का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हमें खून और गोश्त में जिंदगी बसर नहीं करना। हमें रूह के मुआफिक पैदा किया गया है, हमें रूह के मुआफिक ही चलना है, और रूह के मुआफिक ही हम चलेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के हम 7 बादलों पर जलाली बदन लेकर उड़ जाएंगे, और उसके बगैर कुछ भी मुमकिन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं।